پھر میں نے کسی طرح بہانہ بنا کر بدری نارائن کو ایک دفعہ ٹال دیا۔ دوسرے دن انکا نے مجھے بتایا کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ میرے ذریعے کچھ نادیدہ قوتوں کا راز جان کر انہیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، اور اگر تم نے مجھے اس کے سر پر چلے جانے کا حکم دیا تو اس کی خواہش پوری کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی اور وہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ پھر ممکن ہے وہ تمہیں کچھ اور پریشان کرے۔ یہ ناممکن ہے انکا، جب تک نرگس صحت یاب نہیں ہو جاتی اور تربینی سے میں نمٹ نہیں لیتا، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کروں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور تم خود بھی کہہ رہی ہو کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں، بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے کبھی بدری نارائن کے حوالے نہ کرو، اس طرح وہ اور شیر ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی ایسے شخص کے حکم پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاؤں جو بعد میں خود میرے لیے وبال جان بن جائے۔ میں اس کے سر پر نہیں جانا چاہتی ہوں جمیل۔ پھر تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے انکا؟ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق پورنماشی کی رات مرگٹ پر جانا ہی پڑے گا، اور کوئی صورت تو ایسی نظر نہیں آتی، میں نے اداسی سے کہا۔ ہاں جمیل، انکا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی مشورہ ہے کہ تم وہاں ضرور جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یعنی مرگے مرگٹ جانا ہوگا اور پھر تمہیں گویا اس کے حوالے کرنا ہوگا۔ تم وہاں جانا اور اس سے کہنا کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ تمہارے ذریعے مجھ سے کہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ شرط ماننے پر کبھی آمادہ نہ ہوگا، انکا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس طرح تو صورت ٹکراؤ کی پیدا ہو جائے گی، میں نے پرخیال لہجے میں جواب دیا، اور میں چاہتی بھی یہی ہوں کہ وہ منحوس پنڈت تم سے ٹکرا جائے۔ جانتے ہو جمیل، اس صورتحال کے بعد کیا ہوگا؟ مجھ پر سے وہ پابندی ختم ہو جائے گی جس کے تحت میں دوسری پرسرار قوتوں سے جنگ کرنے سے گریزاں ہوں۔ میں ظاہر ہے بے وجہ بدری نارائن سے ٹکرا نہیں سکتی، دیوتا اس بات سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں ٹکراؤ کا کوئی جواز پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ تم یہ باتیں نہیں سمجھو گے، پر میری بات ذہن میں رکھو۔ میں دیر تک پس و پیش کرتا رہا اور انکا مجھے بدری نارائن سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سکھاتی رہی۔ چاروں ناچار میں نے اس کی تمام ہدایتیں ذہن نشین کی، پھر موضوع بدل کر بولا، نرگس کی صحت کے بارے میں مجھے تشویش ہے۔ دیکھو نا وہ کس قدر لاغر نظر آتی ہے، میں اسے بہت توانا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے نرگس کی بیماری کے لیے بھی کچھ سوچا؟ 3 روز کی بات اور ہے جمیل، اس کے بعد نرگس کو کسی اچھے پہاڑی مقام پر لے چلیں گے جہاں اس کا بہتر علاج مناسب طور پر کروا سکیں گے، اور تم بھی کچھ دن سکون سے گزار سکو گے۔ اس پہاڑی مقام پر ایسی دلچسپی کی اور بہت سی چیزیں ہوں گی، انکا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے وضاحت نہیں چاہی، اس نے میری دلچسپی کا کیا خاص انتظام کیا ہے؟ پھر میں نے بدری نارائن سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اور مرگٹ کی طرف چل پڑا۔ پورنماشی کا چاند نیلے آسمان پر پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس وقت میں اس کے حسن سے متاثر نہ ہو سکا، شاید اس لیے کہ مرگٹ کی پرسرار اور ہولناک ویرانی نے چاندنی کو بھی اپنے خوفناک مبہم ارادے میں ضم کر لیا تھا۔ ہر طرف بڑا ہولناک سناٹا طاری تھا۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی ہندو مردے کی گندی آتما میرا پیچھا کر رہی ہو۔ میری دستی گھڑی اس وقت پورے 12 کے عمل کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے حجرے میں چاروں سمت بغور جائزہ لیا، لیکن دور دور تک کسی ذو روح کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ اب بھی اپنے خیالات میں گم تھی۔ میں ایک جگہ رک گیا اور اس جانب نظریں جما دیں۔ بدری نارائن کی جدھر سے آمد متوقع تھی۔
अभी मुझे वहाँ खड़े हुए मुश्किल से 1 मिनट गुजरा था कि पुष्ट से बद्री नारायण की आवाज़ सुनकर तेजी से पलट कर देखा। बद्री नारायण मुझसे 2 फुट के फासले पर खड़ा मुझे मशकूक नज़रों से देख रहा था। तारीकी के बावजूद मुझे उसकी आंखें रोशन नजर आ रही थीं। 2 दहकते हुए सुर्ख अंगारों की तरह मुझे बद्री नारायण की अचानक आमद पर हैरत थी, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल से अपने आप को तसल्ली दी कि वो पहले ही से यहीं कहीं छुपा बैठा होगा और मुझे महज खौफजदा करने की खातिर उसने ये अंदाज इख्तियार किया होगा। इस ख्याल ने मेरे दिल में बद्री नारायण से नफरत और फैला दी। मैं उसके रोशनी के सामने खड़ा रहा। कुछ देर तक मुकम्मल सकूत तारी रहा। फिर बद्री नारायण की खुश्क आवाज़ ने सीना चीरती हुई उभरी, जमील अहमद खान, मुझे खुशी है कि तुम ठीक वक्त पर आ गए। क्या इनका इस समय तुम्हारे सर पर मौजूद है? हाँ, मैंने दीदा दानिस्ता इख्तिसार से काम लिया। और इनका के सिलसिले में तुम्हें अपना वचन याद है? हाँ, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। मैं इस समय तुमसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अपने दिए हुए वचन के अनुसार सारा अब तुम इनका को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें अपने देवी देवताओं की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि इनका को 2 रोज बाद वापस कर दूंगा। बद्री नारायण ने एक एक लफ्ज बहुत जमा कर कहा। अब मेरे लिए पैंतरा बदलने का वक्त आ गया था। मैंने बड़े खुश्क लहजे में कहा, बद्री नारायण, तुम इस ख्वाहिश का इजहार होटल में भी कर सकते थे। मुझे आधी रात को मरगढ़ से बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या इसकी मैं वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण क्या था, ये मैं बेहतर जानता हूँ। तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बद्री नारायण ने मुझे कीना तोड़ नजरों से घूरते हुए जवाब दिया। मेरा ख्याल है तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कुदरे दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। तुम्हारी बातों से मुझे फरेब की बो आ रही है। पिंडत बद्री नारायण। जमील अहमद खान, यकलख्त बद्री नारायण गरज पड़ा। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तुम अपने पुराने दिल जल्द भूलने के आदी हो। क्या तुम्हें मैं याद दिलाऊं कि उस समय तुम किस से बात कर रहे हो? क्या मुझे फिर बताना पड़ेगा कि तुम इस समय किसके सामने खड़े हो? तेवर बिगाड़ कर बातें ना करो। इस तरह तुम मुझे मरूब नहीं कर सकोगे बद्री नारायण। मैंने बेपरवाही से कहा, अगर मामले की बात करनी है तो अपनी खोपड़ी ठंडी रखो। ये बात भी ध्यान में रखो कि जब तक तुम मुझे मरगढ़ बुलाने का कारण नहीं बताओगे, मैं इनका को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुम मूर्ख हो। तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। बद्री नारायण किसी सांप की तरह बल खा कर बोला। उसकी आंखों की सुर्ख बत्ती बेतदरीज गहरी होती जा रही थी। पिंडत जी, मैं पहले ही तुम्हें जानता हूँ, लेकिन अब खूब पहचान गया हूँ। इसलिए अब तुम्हें आंखें पीली करने की कोशिश ना करो और मुझे बताओ कि इनका को हासिल करने की खातिर तुमने शमशान भूमि का इंतखाब क्यों किया? मैंने इनका के इशारे पर उसे बेपरवाही से जवाब दिया। वादा अपनी जगह है, लेकिन एक मखसूस शख्स से वादा निभाना मेरे नज़दीक हमाकत है। बद्री नारायण मेरा जवाब सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तुमसे तू पर उतर आया। पापी, तू अपने वचन से फिर कर घूर पोप कर रहा है। अगर मक्ती चाहता है तो अब भी वक्त है, सीधी तरह इनका को मेरे हवाले कर दे। परंतु अगर तूने इनकार किया तो फिर ना कहना मैंने तेरे साथ क्या किया। ठीक उसी वक्त इनका फुदक कर मेरे सर से नीचे उतर गई। एक लम्हे के लिए मैं घबरा गया। इनका का अचानक कुछ कहे बगैर सर से नीचे उतर जाना मेरे लिए तशवीशनाक था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने खुद पर काबू पाकर कहा, पिंडत, बर्दाश्त की हद होती है। तुम बहुत बढ़ रहे हो। मुझे मजबूर ना करो मैं तुम्हारे साथ बद कलामी करूं। मूर्ख, इनका की शक्ति पर तुझे इतना घुमंड है? ले अपनी आंखों से देख। बद्री नारायण पीछोताब खाकर बोला। फिर उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। गालबन वो किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुका था। मेरे लिए ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन थी। मुझे इस वक्त इनका के मशवरे की शदीद ज़रूरत थी और वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। मुझे इनका पर गुस्सा आ रहा था। मेरी नज़रें मुसलसल बद्री नारायण के चेहरे पर मरकूज थीं। उसके होंठ बड़ी तेजी से हिलते रहे। फिर वो अचानक उछलकर 2 कदम पीछे हटा और जोरदार आवाज में बोला,
मियाँ जी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बच्चों का खेल दिखाऊं। जरा अपने बाएं हाथ की जानब। मैंने बाएं हाथ की तरफ नजर डाली तो दिल धक से रह गया। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इनका मुजस्सम औरत के रूप में मेरे सामने खड़ी कहर आलूद नजरों से मुझे घूर रही थी। मैंने आंखें फाड़े उसे देखता रहा। फिर मेरी नज़रें उसके पैरों पर पड़ी और मुझे एहसास हो गया कि इनका ने नारायण की शख्सियत के बारे में जो कुछ बताया था, इस वक्त भी बद्री नारायण ने मुझे खौफजदा करने के लिए एक फर्जी इनका को अपनी ताकत के जोर से तख्लीक किया था। मुझे इस धोखे का यकीन सामने पड़े हुए फर्जी इनका के पाँवों को देख कर हुआ था, जहां इनका जैसे नुकीले पंजों की बजाय औरतों जैसे पैर नजर आ रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बद्री नारायण दोबारा गरजा, पहचान ये कौन है? अगर नहीं पहचानता तो तुझे इनका का वो रूप दिखाता हूँ जो तूने हमेशा देखा है। बद्री नारायण के जुमले के इख्तिताम के साथ ही मेरी निगाहों ने जो मंजर देखा उसे मैं आज भी याद करके दहशत के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि मेरे सामने खड़ी हुई औरत इनका नहीं है, बल्कि किसी बदरूह की मादी सूरत है। फिर भी वो मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। औरत का जिस्म बतदरीज छोटा हो रहा था। अज़ाब भी उसी मुनासबत से छोटे होते गए। कुछ देर बाद उसका कद बमुश्किल 6 इंच हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे इनका का था। अभी मैं ये मंजर सहमी हुई नजरों से देख ही रहा था कि बद्री नारायण ने मुझे मुखातब करके करख्त आवाज में कहा, मियाँ जी, क्या अब भी तुम्हें वचन पूरा करने से इनकार करोगे? बद्री नारायण, मैंने इनका की गैर मौजूदगी में मुहतात रहना मुनासिब समझा। मैं तुम्हारी शक्ति के से चमकदार पहले भी देख चुका हूँ। शिवचरण के सिलसिले में तुमने मेरी मदद की थी। बरकाती शाह का रास्ता भी तुम्ही ने दिखाया था, लेकिन ज्यादा बातें ना बना। मैं केवल एक शुभ तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बद्री नारायण ने मेरा जुमला हवाई गर्जदार आवाज में कहा, इनका को मेरे हवाले करने के सिलसिले में तेरा क्या जवाब है, हाँ या नहीं? इसीलिए वो लम्हात बड़े सब्र आजमा थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मूजी पिंडत को क्या जवाब दूं। इनका ने मेरे सर से उतरकर मेरे हौसले पस्त कर दिए थे। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। बद्री नारायण मुझे एक देवी की शक्ल में नजर आया और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा मुकाबला एक गैर मामूली शख्स से है जो हैरत अंगेज पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है। क्या सोच रहे हो कि अब भी तेरी समझ में नहीं आया? बद्री नारायण का जुमला सुनकर मुझे झुरझुरी आ गई। सुंदरी, मैं तुझे काली माई के शुभ नाम पर हुक्म देता हूँ कि तू इस मोरख को ऐसा कष्ट दे कि ये सारा जीवन बेअक्ल रहे। इस अपराधी की यही सजा है। देवी की इस भीड़ को अवश्य स्वीकार करेगी। मेरे लिए इस वक्त पाए रफ्तन ना जाने क्या होने वाला था। बद्री नारायण का जुमला सुनकर मैंने अपनी तवज्जो उस पुरस्कार औरत की तरफ मबजूल कर ली। उसने मनमनाता हुआ कहका लगाया। फिर पलक झपकते ही वो दराज कद हो गई और मुझे खौफनाक नजरों से देखती हुई आगे बढ़ी। मैं उसके आगे बढ़ने पर सर से पांव तक लर्द गया। खौफ व दहशत से मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। मौत मेरे सामने थी कि अचानक इनका की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, जमील, घबराओ नहीं, हालात का मर्दाना वार मुकाबला करो, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। इनका की बात सुनकर मैं पूरी तरह होश में आ गया। मेरे जिस्म में बिजली की लहर दौड़ गई और एक लम्हे में मुझे अपनी बुजदली पर गुस्सा आया कि जब मुझे इनका की हमायत हासिल थी तो फिर भला किस बात का खौफ। इनका का इशारा पाकर मैंने बिगड़े हुए अंदाज से सुंदरी को घूरा और सर्द लहजे में कहा, सुंदरी, तू कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुझे इतना बता दूं कि अगर तूने मुझसे टकराने की कोशिश की तो तेरा अंजाम खराब होगा। सुंदरी ने मेरा जवाब सुनकर फिर एक मनमनाता हुआ कहका लगाया। तैश और गुस्से की शिद्दत से उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल मकरूह हो गया था। एक लम्हे तक वो मुझे खून ख्वार नजरों से देखती रही। फिर उसने जमीन से मिट्टी उठाई और हाथ बुलंद किया, लेकिन इससे पहले कि वो मिट्टी मुझ पर उछालती, मैंने एक बड़ी कर्बनाक चीख बुलंद करते हुए देखा।
दूसरे ही लम्हे उसके बदन से आग के शोले बुलंद हुए और मिनटों में जलाकर खाक सत्र कर गए। मैंने घूमकर बद्री नारायण को देखा, जिसके चेहरे पर गौरव फिक्र के असरात थे, और वो इसी तरफ देख रहा था जहां इनका ने सुंदरी का क्रियाक्रम किया था। मैंने मौका से फायदा उठाते हुए बद्री नारायण को मुखातब किया, पंडित जी, देख लिया तुमने अपनी सुंदरी का अंजाम? कोई और खेल दिखाओ ताकि जवाब में मुझे भी कुछ दिखाने का मौका मिले। बद्री नारायण ने जहरीली नजरों से मुझे सर से पांव तक देखा, फिर दोबारा नजर घुमाकर किसी नादीदा कुव्वत से मुखातब होकर बोला, तूने अच्छा नहीं किया। सुंदरी की मौत हमेशा मुझे याद रखेगी। तूने काली माई को कष्ट दिया है। देवी देवताओं की शक्ति से टकरा के तूने अच्छा नहीं किया। शिव शंकर महाराज का श्राप तुझे क्षमा नहीं करेगा। मैं हैरत से आंखें फाड़े बद्री नारायण को देख रहा था कि आखिर वो किससे मुखातब है। इतना अंदाजा तो मैंने जरूर कर लिया था कि बद्री नारायण के कस बल ढीले पड़ चुके हैं। मैं जा रहा हूं, बद्री नारायण ने बात जारी रखते हुए कहा, परंतु याद रखना कि भूल चूक मनुष्य से ही नहीं, देवी देवताओं से भी हो जाती है। वक्त तुझे बताएगा कि मैं क्या हूँ। बद्री नारायण किसी जख्मी दरिंदे की तरह पीछो ताब खाता मेरी जानब पलटा, फिर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ दूसरी तरफ चला गया। मैंने उसकी आंखों में सख्त तरीन इंतकामी जज्बे की झलकियां देखी थी, लेकिन मुझे उसकी मतलब भर परवाह नहीं थी। मेरा हरीफ अपनी शिकस्त तस्लीम करके जा चुका था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और तसव्वुर की मदद से सर की जानब देखा तो इनका वहां मौजूद थी। तवक्का के खिलाफ वो इस वक्त बड़ी खोशो खुरम नजर आ रही थी। उसकी मासूम मासूम सी आंखें खुशी के जज्बे से चमक रही थी। मुझे देखकर बोली, जमील मेरे आका, मैंने उस पंडित की सुंदरी का क्या हश्र किया? कौन थी वो? मैंने वापसी के रास्ते पर कदम उठाते हुए पूछा। एक गंदी रूह जिसे पंडित ने अपने कब्जे में कर रखा था। मेरा ख्याल है कि अब बद्री नारायण तुम्हारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। क्या सुंदरी की मौत के बाद वो तुम्ही से मुखातब था? हाँ, इनका बड़ी शोखी से अपने दीदे मटका कर बोली। नाकामी ने उसके औसान खता कर दिए। मुझे जरखदीद लोंडी की तरह अपने पास रखना चाहता था, कोई जाप किए बगैर, कोई तपस्या किए बगैर। उसे मालूम नहीं था कि मेरा हसूल सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि मैं खुद किसी के सर पर चली जाऊं या कोई मेरे लिए जाप करे। वो तो बड़ी आसानी से मुझे हासिल करना चाहता था, बेवकूफ कहीं का। इनका मैंने कुछ सोचते हुए संजीदगी से कहा, ये तो सही है, मगर बद्री नारायण की आंखों में ऐसे इंतकामी जज्बे की तड़प थी। मुझे डर है कि वह हमसे बदला जरूर लेगा। तुमने खुद कहा था कि वो कोई मामूली पंडित पुजारी नहीं है। अब वो ऐसा करने की हमाकत जरा मुश्किल ही से करेगा। इनका ने अपने रवायती बेनियादी से कहा, जब तक उसने सुंदरी के जरिए तुम पर हमला नहीं करवाया मैं खामोश थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ तुम देख ही चुके हो। अगर बद्री नारायण पहले ही खामोशी से मान जाता तो ठीक था, मगर उसने मुझे धमकियां दी। मेरा ख्याल है कि आइंदा वो मुहतात रहेगा, क्योंकि जब भी वो तुम्हें छेड़ने का ख्याल दिल में लाएगा, उसे मालूम होगा कि उसका हुस्र भी सुंदरी जैसा हो सकता है। और फिर वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन वो वक्त आन पहुंचा कि मैंने इनका को काफ़ी दिनों से परेशान और बुझे बुझे से पाया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कौन सी ताकत है जो तुम्हारे और मेरे आड़े आ रही है? मैंने उदासी से पूछा। तो वो बोली कि वो कोई गैर मामूली ताकत हो सकती है जिसे देवी की हमायत हासिल है। इनका की आवाज़ में बेबसी थी। मैंने उसे इस पुरस्कार कुव्वत के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ना जान सका। ये तमाम पंडित पुजारी मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन जब उन्हें किसी मामले में देवी की हमायत हासिल हो जाती है तो मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी शक्ति सिर्फ तुम्हारे मामले में बेअसर साबित हो रही है। वैसे मेरी शक्ति कौन छीन सकता है? बद्री नारायण अपने जाप में कामयाब हो जाएगा, मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद बुझी हुई आवाज में कहा। यही नजर आता है, मगर जमील
तुम से बिछड़ कर मुझे शदीद सदमा होगा। इनका ने बसोरते हुए कहा, अगर मैं अपने वजूद पर कादर होती तो खुदकशी कर लेती, लेकिन तुम्हारी जुदाई गवारा ना करती। वक़्त का खेल है इनका, हम सब बेबस हैं। तकदीर में यही लिखा था जो पूरा हुआ। जमील, तुम खुशकिस्मत हो कि माला रानी तुम्हें मिल गई है। तुम्हें अपनी दिलबस्तिगी का सामान कर सकते हो। मुझे किससे बात करोगी? मेरी जिंदगी सिर्फ इसलिए वक्फ है जो मेरा मालिक हो। मुझे खुद पर कोई इख्तियार नहीं। इन पिंडतों में बहुत कम मरते हैं कि मैं आज़ाद होती हूँ। इनका मेरी जान, क्या तुम मेरा एक आखिरी काम कर सकती हो? मैंने जज्बाती लहजे में कहा। कहो जमील, काश मैं तुम पर अपना वजूद नछावर कर सकती। अगर तुम्हारी इनका के बस में हुआ तो जरूर पूरा होगा। मुझे मार डालो इनका, अपने पंजे इतनी जोर से मेरे सर में चुभाओ कि हर एहसास फना हो जाए। ये जिंदगी तुम्हारे बगैर बेकार है। मैं ये नहीं कर सकती। मायूस क्यों होते हो? इनका तड़प कर बोली, तुमने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है। वक़्त का इंतज़ार करो। मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर कामयाब होगे। दिलखराश गुफ्तगू, वो जुदाई के लम्हे, इनका मुझे बच्चों की तरह दिलासा देती रही। मेरी आंखों के पीछे छुपा हुआ आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मेरी इनका जा रही थी। इन कर्बनाक लम्हात का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और वो लम्हा आ गया जब इनका ने मुझसे इजाज़त मांगी, अलविदा कहा और मुझे बद्री नारायण की कामयाबी का मसदा सुनाकर हसर तो याद से मेरे सर से रेंग गई। वो क्या गई कि मेरा दिल पहलू से निकलने को बेताब हुआ। उस रोज मैं किन किन कैफियतों से दो चार हुआ, कैसे कैसे दीवानगी के दौर पड़े, इसका हवाला मुझे इन मुलाजमीन से मालूम हुआ जो मेरी निगरानी पर मजबूर थे। मैं इनका की जुदाई के गम में दीवाना हो गया। मैंने अपना सर दीवारों से टकराया। अगर इस जुनून के आलम में मुहाफ़िज़ दस्ते के सिपाही मुझे जेल से बर वक़्त ना निकालते या उन्हें कुछ देर हो जाती तो ये तारीक कोठरी मुझे अंधेरों में ऐसे समेट लेती कि फिर कभी मैं रोशनी में ना आ सकता। अस्पताल में मेरी हालत संभलते संभलते 15 दिन लग गए। इस दौरान डॉक्टर और नर्सों ने कई बार मुझसे मेरे अजीज़ो अकारब के बारे में दरियाफ़त किया, मगर मैं हर बार एक सर्द आह भरकर चुप हो गया। अब किसी से मिलने और किसी को देखने को जी नहीं चाहता था। मैंने उनसे कह दिया कि मैं तन्हा हूँ। एक माह बाद मुझे अस्पताल से दोबारा जेल भेज दिया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर की सिफारिश पर मुझसे ज्यादा मेहनत तलब कोई काम ना लिया गया। फिर मैं जेल से रिहा होकर न जाने कितनी देर तक आवारागर्दियां करता रहा। इनका की जुदाई से मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरी कोई भी मंजिल नहीं थी। हर जगह मुख्तिल, हर जगह मस्बे नजर आती। खामोशी से एक एक तरफ कदम बढ़ाने लगा, बेसिमत बे इरादा कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने पलट कर देखा। साधु जगदेवियो मेरे पुष्ट पर खड़ा मैनी खेद नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई और चमक देखकर मेरा जिस्म गुस्से और नफरत से मुर्तअश होने लगा। उसे देखकर सारा जिस्म का दर्द करने लगा और जेल की तमाम मुशक्कतें और सहूलतें नजरों में घूम गईं। फिर मैंने अपने आप को अपनी किस्त में के सुपुर्द कर दिया और किस्मत के साथ साथ चलता रहा। फिर मैंने थक हार कर एक साइबान के नीचे पनाह ली। कुछ देर तक भूख की शिद्दत ने मुझे परेशान किया और फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं सोता रहा क्योंकि मेरी किस्मत सो चुकी थी। उठा उस वक़्त जब मेरे पाँव पर किसी ने ज़ोर से ठोकर मारी। मैंने आंखें खोल कर देखा, कोई शख्स मेरे करीब खड़ा था। अंधेरे और गनूदगी के बायस मैं उसका चेहरा ना देख सका, लेकिन उसके जिस्म पर महज एक धोती देखकर ख्याल गुजरा कि शायद वो भी मेरी तरह कोई बदनसीब है जो रात इसी साइबान के नीचे गुजारता है। मुमकिन है मैंने उसकी जगह पर कब्जा जमा लिया हो। इस ख्याल से मैं आहिस्ता से उठा और साइबान से बाहर निकल आया।
लेकिन अभी मैं कुछ दूर ही गया था कि ताक़ब करते हुए कदमों की आहट ने फिर मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। पलट कर देखा तो वही शख्स मेरे पीछे खड़ा था। मैं रुक गया और मुझे हैरत थी कि आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। नवार्ड मेरे करीब आकर 2 कदम के फासले पर रुका तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बेजारी और दुरुस्ती से उसे मुखातब किया, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों लगे हो? तुम्हें पहचानने में ज़रा देर लगेगी। मैं तुम्हारा पुराना वाकिफ़कार हूँ, जमील अहमद खान, बहुत पुराना। नवार्ड ने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी आवाज़ कुछ मानूस ज़रूर थी, लेकिन इस वक्त मैं चौंका कच्ची नींद से बेदार हुआ था, इसलिए उसे पहचानने से कासर था। यूं भी मैं उसी हालत में अपनी शिनाख्त कराने पर तैयार नहीं था। मैंने उसे टालने के लिए कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है भाई, मेरा नाम जमील अहमद नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? नवार्ड ने डटाई से पूछा। मुझे बेचैनी महसूस हुई। मैंने बिगड़ कर कहा, अपनी राह लो मियाँ, क्यों मुझ गरीब को तंग कर रहे हो? खान साहब अपने पुराने मित्रों को भी नहीं पहचानते। बहुत दिनों के बाद आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मैं तुम्हारा मित्र हूँ खान साहब। नवार्ड के लहजे में तंज की आमेज़श थी। वो मेरी बातें यकसर नज़रअंदाज कर गया। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए। जाओ, दफा हो जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्या कहते हो खान साहब, तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं? भला ये कैसे हो सकता है? बहुत दिन के बाद तो ये दिन आया है महाराज। इस बार अजनबी ने तलखी से कहा। तुमने भी तो मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा था। तुमने कौन सी कसर छोड़ी थी? अल्फाज मेरे हल्क में फंसने लगे और मुझे वो आवाज़ बद्री नारायण की लगी। बद्री नारायण जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने मुझे इस हाल को पहुंचा दिया था। मैंने हैरत से सर उठाया, फिर खौफजदा लहजे में उसे शोहबे की तस्दीक के लिए पूछा, क्या पिंडत बद्री नारायण हो? बड़ी कृपा है तुम्हारी जमील अहमद, जो तुमने मुझे पहचान लिया। बद्री नारायण ने तंजिया अंदाज में कहा। मेरा तो ख्याल था कि मुझे खुद को पहचानने के लिए कुछ बीती कहानियां दोहरानी पड़ेंगी। बद्री नारायण का जवाब सुनकर मुझ पर एक लम्हे के लिए दहशत का दौरा पड़ा। वो अपने तमाम हिसाबात चुकाने के लिए आखिर मेरे पास आ गया था। मेरा दुश्मन मेरे सामने था, लेकिन मैं उस पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इनका उसके कब्जे में थी। मैं एक बेदस्तोपा मुजरम की तरह उसके कदमों में पड़ा था। अब मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था। इस यकीन से मुझे कुछ सकून सा महसूस हुआ कि अब सिर्फ ये अंदेशा लाहक था कि वो कम वक्त मुझे एक इशारे में हलाक करता है या अज़ियतें दे दे कर मारता है। बद्री नारायण से किसी रायत की तवक्का फजूल थी। मैंने आने वाले लम्हों के बारे में तेजी से सोच रहा था। अचानक बद्री नारायण ने कहा, किस विचार में गुम हो जमील अहमद? कुछ बोलो, कुछ चहको, खामोश क्यों हो गए हो? मेरे पास अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रहा बद्री नारायण। मैंने शिकस्त खुर्दी से कहा, किस्मत का पांसा अब तुम्हारे हक में पलटा है। आज अपने दिल के अरमान निकाल लो। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। देर ना करो, चलो अपनी हसरतें पूरी कर लो। बद्री नारायण ने महका मज़हका खेज अंदाज में कहा, बहुत निराश हो गए हो खान साहब, टूट से गए हो। वो तुम्हारी तेजी, वो सीना चाल कर चलने वाली अदा कहाँ गई? तुम तो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते थे। मुझे याद है एक बार तुमने काली के पोतर मंदिर के तय खाने में घुसकर मुझे भस्म करने की कोशिश की थी। तुम्हें भी याद होगा। बद्री नारायण के तेज नश्तर बर्दाश्त करने और खून के घूंट पीकर चुप हो जाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने गर्दन झुकाकर उसके जुबान के जरिए दिल की भड़ास निकालने का खूब मौका दिया। वो मुझे मतून और जलील करता रहा। मैं खुद को एक ऐसा बूढ़ा शख्स लग रहा था जिसकी सारी तवानाई जायल हो चुकी थी। तुमने बड़ी महान शक्ति हासिल की थी जमील अहमद। माला रानी जैसी सुंदरता नारी
तुम्हारे पास थी। और हाँ, और वो इनका भी तो थी, याद है तुम्हें? तुमने मुझे वचन दिया था कि अगर मैं विनती करूंगा तो तुम इनका की शक्ति मेरे हवाले कर दोगे, परंतु अपने वचन का पास नहीं रहा था, तुम मुकर गए थे। बद्री नारायण ने गुजरी हुई बातें एक एक करके दोहरानी शुरू कर दी। तुम्हारी इनका देवी आजकल कहाँ है, जिस पर तुम्हें बड़ा नाज था? इनका के बारे में पूछकर मेरा मजाक उड़ाते हुए बद्री नारायण मैंने बुझी हुई आवाज में कहा, निराश मत हो बालक, इनका का क्या है, वो आज यहाँ कल वहां, कहो तो मैं अभी उसे कुछ देर के लिए तुम्हारे सर पर भेज दूं। बद्री नारायण जहर खान से बोला, मुझे तुम्हारी हालत देखकर दुख हो रहा है। बद्री नारायण शायद तय करके आया था कि वो मुद्दतों का सारा कीना आज ही निकाल देगा। मैंने सोचा कि जमील अहमद खान ये कमीना अपने इरादों से बाज नहीं आएगा। मैंने फैसला किया कि खौफ की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। चुनाचा एहतियात बलाए ताक रख कर मैंने बद्री नारायण को कहर आलूद नजरों से घूरा और गर्ज कर कहा, बद्री नारायण, तुम इनका की शक्ति प्रायत करके और महान शक्ति के मालिक बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्तिपूर्वक लोगों का अंदाज नहीं आया। जिन कम ज़र्फ़ों को थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं वो अपने आपे में नहीं रहते। ये लोंढियारपने की बातें बंद करो। तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम जमील अहमद खान से बात कर रहे हो, जिसकी जिंदगी में बड़े नशीबो फराज आए। मैं इन बातों का आदी हूँ। सब कुछ चला गया तो क्या हुआ, गैरत तो अभी बाकी है। इस जनानापन से बाज आओ, जो करना है करो, बेकार वक्त जाया ना करो। अरे महाराज, नाराज हो गए, क्षमा कर दो, मैं भूल गया था कि तुम एक बेवकूफ आदमी भी हो। बद्री नारायण ने हंसकर कहा, ओ कमीने पिंडत, अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तेरी चुटिया पकड़कर तेरा सर जमीन से रगड़ दूंगा। मैंने गजबनाक लहजे में कहा, जिसकी जिंदगी का चिराग टमटमा रहा हो वो ऐसी ही बातें करता है। मैंने सोचा, और उस आखिरी वक्त में जिल्लत की मौत क्यों मरा जाए। बद्री नारायण मेरा जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें एक लम्हे को पिटपटाईं, फिर उनमें गुस्से की सुर्खी छा गई। उसने हकारत से मुझे देखा और सर्द आवाज में बोला, जमील अहमद खान, मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर कुत्तों से बदतर मौत मारूंगा। अभी तुम्हारा एक हाथ टूटा है, मैं दूसरा भी तोड़ डालूंगा, फिर तुम लंगड़े होगे। इसके बाद तुम्हारी आंखों की रोशनी भी अंधेरों में बदल दूंगा। तुम दर बदर की खाक छानते फिरोगे, गंदी नालियों में लौट लगाते नजर आओगे। देवी देवताओं की यही इच्छा है। मैं तेरे पास देवी देवताओं से नहीं डरता। मैं उसकी तरफ किसी पागल कुत्ते की तरह लपका और जितनी गालियां उसे दे सकता था मैंने दे डाली। मैंने जुनून की हालत में उसके गले में पड़ी हुई एक माला खींचकर दाने दाने कर दी, लेकिन मेरे हाथ अचानक रुक गए। इससे पहले कि मैं बद्री नारायण के जिस्म पर चढ़ बैठता, मेरे सर पर शदीद चुभन हुई, वही मानूस चुभन। मेरे कदम मंजमंद हो गए और ऐसे ही मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे खून की गर्दिश रोक दी हो। मैंने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए और मेरा जहन बतदरीज पुरसकून होने लगा। मैंने आलम तसव्वुर में अपने सर पर नज़र डाली। वहाँ इनका मौजूद थी। इनका के अंदाज में अजनबियत थी, जैसे वो मुझे बिल्कुल ना जानती हो। वो इनका जो कभी मेरे इशारे पर अपना खून बहा देती थी, इस वक्त मुझे बड़ी खतरनाक और कीना तोड़ नज़रों से घूर रही थी। उसकी निगाहों में नफरत और इंतकाम के जज्बे नुमायां थे। उसका चेहरा खून की तमाज़त से सुर्ख हो रहा था। उसने मेरे सर में अपने नकीले पंजे पूरी शिद्दत से गड़ रखे थे। मैंने जो इनका को इस आलम में देखा तो साबका तअल्लुक़ की रियायत चाही। मैंने दिल ही दिल में हसरत से कहा, इनका तुम? इनका ने नफरत से मुंह फेर लिया। इनका, मुझे इस कमीने से बचाओ। मैंने उससे इल्तिजा की। वो कहर भरे लहजे में बोली, तूने मेरे आका बद्री नारायण का अपमान किया है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अगर मुक्ति चाहता है तो हाथ बांध कर क्षमा की बख्शा मांग। इनका, ये तुम कह रही हो? मैंने हैरत से पूछा। आगे बढ़ और मेरे आका को डंडूत कर। इनका का लहजा इस कदर खौफनाक था कि मैं उसे देखता का देखता रह गया।
مجھے احساس ہوا کہ اب ان کا سے کوئی امید رکھنا حماقت ہے۔ ایک بار پہلے بھی میں اس منزل سے گزر چکا ہوں۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے جمیل احمد خان، پرنتو تمہاری بدھی میں جلدی بات آ گئی کہ تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تم کتنے حقیر ہو۔ اس کے بعد بدری نارائن کے چہرے کے تاثرات زیادہ تیکھے اور خوفناک ہو گئے۔ اس نے میری سر کی جانب دیکھ کر ہونٹ ہلائے۔ اس کی آواز مطلق بلند نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ میرے بارے میں انکا کو کچھ ہدایت دے رہا ہے۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ ادھر بدری نارائن کے ہونٹ ہلنے بند ہوئے، ادھر انکا کے نکیلے پنجوں کی چبھن پہلے سے کہیں شدید ہو گئی۔ پھر انکا کا تلخ لہجہ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترتا چلا گیا۔ جمیل احمد خان، میری مہان شکتی کے مالک آقا بدری نارائن کی اچھا ہے کہ تم اس سمے پرانے قبرستان کی طرف چلو۔ میں انکا کی طرف حسرت بری نظروں سے دیکھا۔ اس کے تلخ لہجے اور دل آزار زاویے سے شکایت کرنا چاہی، لیکن قوت گویائی نے ساتھ نہیں دیا۔ میرے قدم خود بخود قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ میرے ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ انکا کی پرسرار قوت مجھے قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد میں پرانے قبرستان کے ویران اور سنسان علاقوں میں تھا۔ ادھر اندھیری رات میں قبرستان کا منظر ایک آدمی کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تاحد نظریں قبریں اور گہرا سناٹا اور درختوں کے کسی جھنڈ میں رات کو بولنے والے جانور۔ جمیل احمد خان، کیا تم جانتے ہو کہ میں یہاں تمہیں کیوں لایا ہوں؟ بدری نارائن نے نفرت سے دریافت کیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تم نے نہ جانے کیا چاہتے ہو۔ تم مہربانی کر کے میرا کام جلد از جلد تمام کر دو، میں نے غیر اختیاری طور پر جواب دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہاں پر ایک پرانا کنواں ہے جو دیودھاری کے نام سے مشہور ہے؟ ہاں، میرے منہ سے نکلا۔ تم میرے حکم پر ایک اچھے سیوک کی طرح اس کنویں میں چھلانگ لگاؤ گے؟ بدری کے نارائن کے لہجے میں حقارت اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ تمہاری پلید شریر کا بوجھ اس پوتر دھرتی پر زیادہ دیر کچھ اچھا نہیں رہے گا۔ اس کنویں سے تم باہر نہیں آ سکو گے اور جلد مر بھی نہیں سکو گے۔ اس کنویں کی بلائیں تمہیں شراب دے کر، ایسا شراب دے کر جس سے تمہاری آتما بھی بے عقل رہے گی، تمہیں مار دیں گے۔ بدری نارائن نے جو کچھ کہا مجھ پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ غالباً انکا کی پرسرار قوت نے میرے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر دی تھی۔ بائیں جانب گھوم کر آگے بڑھو، دیودھاری کنواں تمہاری زندگی کا قصہ تمام کرنے کا منتظر ہے۔ اور پھر میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ ابھی مشکل 100 گز دور گیا تھا کہ اس کنویں کے نزدیک پہنچ گیا جس کے بارے میں بدری نارائن نے حکم دیا تھا۔ اس نے میری کسی التجا، کسی آہوکار کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ کرختگی سے بولا، جمیل احمد خان، آگے بڑھو اور اس کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ میں انکا کے حکم پر خاموشی سے آگے بڑھا اور کنویں کے قریب پہنچ کر اس کے منڈیر پر چڑھ گیا۔ کنویں میں اتنی تاریکی تھی کہ اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یوں بھی باہر ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے کنویں کے گپ اندھیروں میں اپنی موت کی پرچھائیاں دیکھیں اور انکا کے حکم پر اپنا جسم آگے کی جانب جھکانا چاہا۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی کہ اچانک کسی نادیدہ طاقت نے میرے شانے پکڑ لیے۔ منڈیر پر اس طرح میرا جسم متحرک ہونے سے میرا توازن بگڑ گیا، لیکن میں جلد سنبھل گیا۔ ایک مدھم مترنم نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی، جمیل کیا کرتے ہو؟ آگے موت ہے، رک جاؤ۔ اس میں آواز میں معلوم نہیں کیا جادو تھا کہ میں دفتن ہوش میں آ گیا۔ وہ آواز کس کی تھی مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن میرے اعصاب پر انکا اور بدری نارائن کا جو سحر طاری تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے بکھلا کر چھلانگ لگائی اور کنویں کے منڈیر سے نیچے آ گیا۔ اسی وقت انکا نے صفاقانہ انداز میں مجھے دوبارہ حکم دیا، جمیل، میرے آقا کے حکم کی تعمیل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے جسم کا سارا خون پی جاؤں گی۔ تمہارا جسم دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کے پنجر میں تبدیل ہو جائے گا۔ Come and fly away with me.